Okay, you may recall from the last class that we came to a representation of converting a language with a given number of uh, words in a sentence into a probability model, which was given as this symbol. We take the case of I is given a certain quantity, let go 1, and we say probability of I given I minus 1. Okay. Of course, हम यहाँ पे word के addresses को देख रहे हैं. We said कि हमारे पास word 1, word 2, word 3, and so on for that. So basically यहाँ पे I in indices को जाके adjust करवा रहा है. Now, today we are going to see how to trace actually values in science. Okay? If we come to this discussion. थोड़ी बहुत आपको recap करवाता हूँ. We mentioned that we have the probability of B given A as the probability of A intersection B. एक टर्म B आपके पास आ गया. ओके. इसी की वाइस वर्सा हमारे पास आ जाएगी ठीक है. You recall that what these are basically ठीक है. This is the joint probability, this is the marginal, and this is also the marginal. And in that case हमारे पास ये joint है और ये आपके पास marginal है. ठीक है. तो इसकी रिप्रेजेंटेशन आपके पास इस तरीके से गिवन है. We look at this with this representation. And according to this, चूंकि हम यहाँ पे अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक इंटरसेक्टिंग रीजन ये आया तो इस इंटरसेक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको इसी रीजन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. It doesn't make any difference. Remember that when we said that a sentence is equal to word 1, word 2, word 3, word 4, and I mentioned this has to be an ordered set. Remember? Yes. है तो ordered, लेकिन हम क्यों इसको कंसिडर नहीं करवाते? तो अगर ये ordered होता तो फिर मैं यहाँ पे इस चीज को बराबर ना कर सकता. इस चीज को मैं बराबर ना कर सकता था. In that case, it would be a little bit different. Okay? The difference would be eat Chinese. This would be the difference. Chinese eat. कॉन्टेक्स्ट अगर आप उसमें डाल दें तो ये ठीक भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है. आइदर वन. सो अगर हम इसकी जॉइंट की तरफ जाएं तो जॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मे भी हम इस किस्म की बराबरी ना कर सकें, तो इस वजह से हमें करना पड़ता है थोड़ा बहुत उसको कंसिडर करवाना. सो हम चूंकि यहाँ पे एक एजम्पशन करते हैं कि हमने यहाँ पे ऑर्डरिंग को नहीं लेनी, हमने उस जॉइंट स्पेस को ही लेना है, तो हमारे पास फिर ये दोनों आपस में इक्वेट हो जाते हैं. और जब इनको इक्वेट करना है तो फिर तो हमारे पास फिर जाहिर बात है फिर हम इस एक्सप्रेशन को भी जरा आगे पीछे करके लिख सकते हैं. और फिर हमारे पास ये एक्सप्रेशन इस किस्म की आएगी. हमारे पास आ जाएगा समथिंग लाइक दिस. Then we writing then it as probability of B given A. ये वाला फॉर्म is actually इस फॉर्म को मैं रीराइट करता हूं. ये मेरे पास आ गया P of A. ठीक है. अब इसको मैं इधर की तरफ लेके आता हूं, ये इधर आ जाएगा. Then look at this.
Okay, what happened? This was multiplied by here, so I got B intersection A. B intersection A is equal to A conditional B multiplied by probability of B. Okay, वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दी और इस तरीके से ये चीज इसमें रिप्लेस हो गया और P A अपनी जगह पे पड़. Okay, if you recall in the very beginning I told you that what this expression means is simply this, that this is actually saying that the count value over here, एक ये count है, एक number है यहाँ पे, probability represent में आ रहा है, that is actually proportional to this A intersection B. Means that if you, let's suppose, take this case, and this is 0.5 and this is 0.5 and this is 0.5 and this is 0.5, so everything is ordered and everything is fine. But if something's changed, like let's suppose this is 0.1 and this is 0.9, तो डेफिनेटली फिर हमारे पास कुछ इस किस्म की आ जाएगी. आई मीन उस केस में वो एरियाज जो है ना, ये बेसिकली एक एरिया की अलामत कर रहा है. हम ये मैट्रिसेस देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स है, लेकिन एक्चुअली इट्स द एरिया which is countable. We have a probability of this, we have the probability of this, ये A है, ये B है. जब ये आपस में ओवरलैप होंगे तो आई मीन डेफिनेटली उसमें आपके पास भी A इंटरसेक्शन हो, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो, कुछ भी आपके पास है. We are actually talking about areas. तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी अगर ये एरिया आपके पास इसकी बड़ी है. And then what this actually does is this is just a scaling factor. Means scaling का क्या मतलब है? भाई मेरे 0.5 मार्क्स है और 0.5 हाईएस्ट मार्क्स है, तो आप इसको स्केल कैसे करेंगे? सपोज एक स्केलिंग फैक्टर है आपके पास नॉर्मलाइजेशन का, तो 0.5 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 आपके पास क्या आएगा? 1 आएगा. 1 का मतलब इसके, दैट मींस is not important. The original thing is important. किसी चीज को आप मल्टीप्लाई करते हैं, किसी चीज को आप डिवाइड करते हैं, that just scale something into bigger or smaller. It doesn't change the pattern of it. So in that regards, हमारे पास यहाँ पे क्या है कि भाई हम यूजुअली उसको इग्नोर करते हैं. एज एन एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने इधर भी इग्नोर किया हुआ है. एक्चुअली अगर आप उस तरीके से देखना चाहें, अगर बिल्कुल आप कहना चाहते हैं ये मॉडल जो मैंने यहाँ पे देखा ये गलत है, मैं भी आपको दिखाता हूँ कि क्यों गलत है. देखिए एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास इससे पहले स्टेप क्या था? हमारे पास इससे पहले स्टेप था आपके पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड n, word n minus 1, word n minus 2, all the way to word 1. This is the joint. We could rewrite it as the probability of Wn given okay. ये क्या चीज है? ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी है. ये क्या चीज है? हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी से मूव हो गए टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. क्या ये जॉइंट और ये कंडीशनल बराबर है? नहीं, दे आर नॉट. दैट मीन्स व्हेन वी मूव फ्रॉम हियर टू हियर देयर इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग एंड दैट मिसिंग इज द टर्म. ठीक है, यू कांट सी दैट टर्म ओवर हियर. हमने इसको इसके बराबर किया कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. Actually, that exists. You have somewhere over here. You have somewhere over here W1. फिर ये और ये चीज बराबर है, लेकिन हम इसको नहीं लिखते. क्यों? क्योंकि हमारे नजदीक ये सिर्फ एक स्केलिंग फैक्टर है. ओके, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप जाके इस इक्वेशन को फिर इस तरीके से लिखते हैं,
all the way to the end. What will happen to the final word? When you come to the end, can you write like this? You can't. W0 doesn't exist. लिहाजा हमारे पास ये आखिरी, ये सारे अगर हमारे पास कंडीशनल आ रहे हैं, फिर आखिरी टर्म हमारे पास ऐसा नहीं आएगा. आखिरी टर्म हमारे पास W1 ही होगा. तो उस तरीके से जब हम ये फॉर्मूला लिखते हैं तो ये फॉर्मूला तो आपके पास इस चीज के लिए है. It's for this. If you really want that term should be included, then you're going to write it as probability of W1. Okay? But since this term over here is just a scaling factor, जो कि आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में देख सकते हैं, ये सिर्फ उसको स्केल कर रहा है, तो स्केलिंग का कुछ फर्क नहीं आता. तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको इग्नोर करते हैं और हम यहाँ पे कहते हैं कि इसको आप एक सिंप्लीफाइंग assumption करते हैं. ओके, नाउ अब ये जो इक्वेशन मेरे पास आ गया है, इस इक्वेशन को कहते हैं Bayes theorem. Have you covered Bayes theorem in another class? कहाँ पे किया जी? उधर ही किया. तो उस केस में आपके पास क्या था? This was the prior, this was the posterior. If you say this is the known and this is the unknown, तो यहां पे उसके रोल्स आपके पास स्वैप हो चुके हैं. यहां पे आपके पास जो है ये रिलेशनशिप है. मैंने लेबलिंग कर दी ताकि आपको चीजें बताऊं. अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम इसको इग्नोर करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भी आपके पास ये चीज इग्नोर हो गई, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्केलिंग फैक्टर है. इस केस में स्केलिंग फैक्टर आपके पास मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 भी कर दें तो वो 5 बन जाएगा. बात वही है कि भाई मेरे पास हाईएस्ट मार्क्स 0.5 है, तो आप उसको 100 से परसेंटेज में लेके जाना चाहते हैं या 10 में लेके जाते हैं, उसकी सेहत में कुछ फर्क आपके पास नहीं पड़ता. इसी तरीके से ये भी आप इग्नोर करवा सकते हैं, क्योंकि ये इधर है तो पोस्टीरियर, लेकिन ये उस दूसरी इक्वेशन का स्केलिंग फैक्टर है. These both of them are just scaling factors. तो जब ये दोनों टर्म्स आप उसमें जाके रिमूव करवा दें, तो फिर तो हमारे पास इधर जो एक्सप्रेशन आपके पास एक्चुअली आ रहा है वो तो सिंपल ये चीज है. ओके, एंड इसको आपने निकालना है तो इसको निकालो, इसको निकालना है तो इसको निकालो. दैट मीन्स ये तो एक किस्म के लूप में पंच में है. ओके, तो लिहाजा ये जो आपके पास जो टर्म आपके पास आ रहे हैं पूरा का पूरा टर्म, इसको यूजुअली ट्रीट किया जाता है एज एन एस्टिमेट, नॉट एज अ प्रोबेबिलिटी. दिस इज एक्चुअली एन एस्टिमेट, अ लाइक्लीहुड एस्टिमेट. प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड एस्टिमेट में आपके पास फर्क है, ये एक चीज नहीं है. The probability gives to you the actual probability of something. The estimate simply gives you the likelihood of that probability. Means अगर कोई डिफरेंस हुआ तो वो डिफरेंस आपके पास सिर्फ उसका एक स्केलिंग फैक्टर का डिफरेंस आपके पास आ सकता है. At the end of the day, it doesn't make a difference. Okay? तो चूंकि अब आपने यहाँ पे वैल्यूज को प्लग इन करना है, अब हमें यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए कि हम इसके फॉर्म में जाके वैल्यूज को जाके प्लग इन करते हैं. सो फार सो गुड. ओके, अब आ जाते हैं एक प्रैक्टिस की तरफ. और सो फार आप यहाँ पे देखें, हमारे पास जो चीज आ गई है वो ये है कि हमें निकालना है. अब अगर हम इस इस्तेलाह में बात करें
कि नाउ आई वांट टू से कि भाई मैंने इधर कुछ वैल्यूज जाके प्लग इन करनी है। ये मॉडल तो ठीक है ना, व्हाट वैल्यूज टू प्लेस ओवर देयर, टू प्लेस द वैल्यूज आई एक्चुअली वांट टू इक्वेट दिस टू दैट। तो मुझे ये एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, मुझे इधर आना पड़ेगा इस चीज की तरफ। ये जो कि मैं निकाल नहीं सकता तो ये एस्टिमेट है। अब एस्टिमेट भी एक फॉर्मूला एट द एंड ऑफ द डे होता है। दैट मींस दिस एस्टिमेट इज गोइंग टू बी अ फॉर्मूला, एंड व्हाट शुड दैट फॉर्मूला बी। उसके लिए आप सेवरल पैरामीटर्स को जाके देख सकते हैं, सेवरल पैरामीटर्स। हम एक पैरामीटर को देखें। समटाइम्स यू कैन मेक अ गेस, और टेक्निकली गेस इसको कहते हैं प्रायर। It's prior because you can literally take a guess over here. But आप इधर भी ले सकते हैं, guess ले सकते हैं। आप इसमें डिस्ट्रीब्यूशन को भी दे सकते हैं। ये कौन सा guess का मतलब है रैंडम सिलेक्शन। तो रैंडम के लिए आप इधर देख सकते हैं, अगर ये यूनिफॉर्म रैंडम हुआ तो फिर दैट मींस कि यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल को आप सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर लेट्स सपोज पता चला कि ये एस्टिमेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की है, तो आप रैंडम नंबर नॉर्मल से निकाल सकते हैं। बट ये कि इधर कुछ पैरामीटर यकीनन जाता है, और उसके बेसिस के ऊपर वो फाइनल चॉइस ऑफ द फॉर्मूला जो होता है वो डिटरमिन किया जाता है। हमारा फाइनल चॉइस है सिंपल काउंट। प्रोबेबिलिटी होती कैसी है वैसे? प्रोबेबिलिटी देखें, एक होता है इस इवेंट कि ये काउंट है डिवाइडेड बाय द टोटल काउंट। फ्रीक्वेंटेस्ट अप्रोच में जब आप उसमें एस्टिमेट करते हैं कि फ्रीक्वेंसी के बेसिस के ऊपर हेड्स कितनी बार आया, टोटल कितनी बार था, यूजुअली हम कहते हैं कि वो 0.5 के बराबर आपके पास आ जाता है। दिस इज द फ्रीक्वेंटेस्ट बेसिस। बट दिस इज एक्चुअली नॉट अ फ्रीक्वेंटेस्ट बेस्ड अप्रोच, दिस इज द बेसियन फिलॉसफी। ठीक है, वो फ्रीक्वेंटेस्ट नहीं है। लेकिन देखिए चूंकि अब ये यहाँ पे स्टक हो चुका है, तो उसमें हमने वो इलाज निकालने के लिए अब यहाँ पे एक काउंट्स का सहारा लेना है। अब वो काउंट्स में सारी चीजें आपके पास डिफरेंट हो जाती हैं। अब उसमें आपके पास क्या आ जाएगा कि हम इस चीज को निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, हमारे पास ये चीज आ जाएगी। हमारे पास आ जाएगा P of B given A, that is then equal to the count of A B divided by the count of ठीक है, मीन्स एक चीज कितनी बार हुआ है, ठीक है, एक इवेंट, और टोटल आपके पास कितनी है। यू टेक दैट एज द एस्टिमेट। दिस इज ऑफ कोर्स मेकिंग अ लॉट ऑफ assumptions। हम यहाँ पे बहुत बड़ी assumption दे रहे हैं, और वो ये कि ये आपके पास हम सिंपल फ्रीक्वेंसी को देख रहे हैं। मुमकिन है कि ये गलत हो, लेकिन हमें एक एस्टिमेट मिले। उसके फिलहाल डिस्कशन में हम इसके ऑल्टरनेटिव या इसके वेरिएंसेस क्या है वो देखेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल आपके पास ये रेफरेंस जी। काउंट 20 लिए ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे रिवर्स में चले गए ना। ये क्या था, ये आपके पास A गिवन B है, गिवन B, तो दैट मींस हमारे पास प्रीवियस क्या है, हमारे पास प्रीवियस यहाँ पे B है। तो अब उस तरीके से आपके पास ये भी जो आपके पास टर्म जितनी भी आएंगे आपके पास आ जाएगा काउंट ऑफ, ठीक है, दिस विल बी वी चेंज्ड, ओके, वी चेंज्ड। इसको निकालने के लिए अब यहाँ पे अब कुछ वैल्यूज प्लग इन कर दे, वो वैल्यूज कहीं ना कहीं इस बार आपके पास आएंगे। तो हम उस मॉडल पे वो जो रिवर्सल वाला आपके पास है, तो हम उसमें कहते हैं कि भाई आपने जाके एक मॉडल पे आपने जाके वर्किंग कर दी है, और उसके बेसिस के ऊपर आपने इस किस्म की, इस वजह से आप यहाँ पे आए और इधर आपके पास आ जाएगा। द रीजन फॉर दैट इज नाउ that now you want to find something out, that you want to find out the probability of Wi given I minus 1, ठीक है। राइट साइड पे आपके पास क्या है, राइट साइड के ऊपर आपके पास आ रहा है the count of
wi minus 1 to wi divided by the count of wi minus 1. I minus 1. अच्छा, ठीक है, I minus 1. हम पिछले के साथ उसको देख रहे हैं, I minus 1. Okay? And that's how you come to this expression over here. अब जब आप इसको प्रैक्टिस में जाके देखेंगे तो उस केस में फिर हमने एक सैंपल के बेसिस पर अब आपको इस फॉर्मूला की थोड़ी बहुत सेंस आएगी. आई ट्राई टू डू दैट मैथमेटिकली, बट आप इसको प्रैक्टिस में करेंगे तो यू विल परफेक्टली अंडरस्टैंड व्हाट इज टेकिंग प्लेस. ओके, सो फार सो गुड. अब हमारे पास ये तीन केसेस हैं. हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस गिवन है. वी हैव आई एम सैम, सैम आई एम, एंड व्हाट वी डू इज we have ठीक है, this is our sentence. Accordance. You're trying to do some predictions over here. How does this predictions take place inside the model which I explained to you? The first thing which you will do is find out the unique words. You actually go toward the 1 gram. And the 1 grams are then, maybe हमारे पास space are कम हो, we will have this, I am Sam, do not like. ओके, और इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या है? कुछ रहता तो नहीं है. ओके, then you go toward the bigrams. And in that case you have all of these. मैं इधर तो मैंने यूनिक किया है, एक गो में यूनिक करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन लेट्स सी. आपके पास आ गया, ठीक है, इधर से स्टार्ट हो रहे हैं. Can we identify unique? So, dot I ठीक है, दो बार आ गया. I am ये भी दो बार आ गया. am Sam एक बार Sam प्लस दो बार डॉट Sam एक बार Sam I am प्लस एक बार, और प्रॉब्लम जो रिवीलिंग है ये भी सारे आपके पास एक बार. ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये चीज है. अब सोचें इस चीज की तरफ कि अगर लेट्स सपोज हम इसमें स्टार्ट करना चाहते हैं विद समथिंग लाइक दिस, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेइंग कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, आई एम
एंड नाउ अब आप उसमें निकालना चाहते हैं कि भाई आगे मैं क्या बोलूं, ठीक है। आगे बोलने के एतबार से मेरे पास एक अच्छा तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट आई हैव स्पोकन सो फार, दैट इज सिंपली काउंट ऑफ, हम वहां पे जा रहे हैं टू आई माइनस वन टू आई, मेरे पास काउंट आ गया आई एम डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ आई माइनस वन क्या है, ये है। तो फिलहाल ये जो मैंने बोला है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो मेरे पास ये आ गई, तो ये मेरे पास आ गया आई एम, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 2 नजर आ रहा है, काउंट आई क्या है मेरे पास 3 है, तो इसका मतलब कभी मेरे पास यहाँ पे 2/3 is equal to 0.66 is the estimate of having spoken this. सर ये डॉट गिवन आई है Yes, राउंड ऊपर yes, ठीक है। हम डॉट इग्नोर भी कर सकते हैं, उससे की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ उस वजह से हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि भी हमें पता चले कि भी स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस क्या है, यानी एक वर्ड शायद कहीं पे दरमियान में ना आता हो, तो स्टार्टिंग के लिए हमने यहाँ पे किया। अब आप इग्नोर करना चाहते हैं तो आपका मॉडल जरा डिफरेंट हो सकता है, बट फॉर्मूला आपके पास ही है आपके पास है। ओके, सो चूजिंग दिस इज जस्ट टू मेक इट बेटर। आई यूजुअली फॉर इंस्टेंस सेंटेंस के स्टार्ट में आता है यूजुअली फॉर इंस्टेंस, तो उसके से फिर आप वहां के डॉट आई करेंगे तो फिर उससे पता चलेगा कि ये स्टार्ट किया। बट लैंग्वेज तो कुछ भी हो सकता है, ये तो अंग्रेजी है, यहाँ पे मैं आपको कुछ भी यहाँ पे बोल सकता हूँ। आई मीन लैंग्वेज का ताल्लुक सिर्फ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अंग्रेजी उर्दू पश्तो की बात नहीं हो रही, लैंग्वेज इज जस्ट समथिंग व्हिच इज गिवन इन फ्रंट ऑफ, अननोन चीज भी होगी और हम कहेंगे कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो मॉडल तो उस पर काम करेगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या आने वाला है वो जरा इंटरेस्टिंग है। सो एज एन एग्जांपल, अब उसके बाद हम कहते हैं क्या, इसके बाद हमें बोलना क्या है, आई एम, सपोज आई एम के बाद हमें सैम बोलना है, या जस्ट बोलना है आई एम ओवर, okay, then in that case this will become the count of m Sam divided by the count of m. This will become the count of m over divided by the count of m. m Sam कितनी बार आ रहा है, m कितनी बार आ रहा है, ये क्या होगा, okay, so then in this case if you want to say कि अब एक चेकलिस्ट आपके पास आ गई, आप टाइपिंग करते जाते हैं ऑटो कंप्लीट में, ऑटो कंप्लीट में अब वो बात एक अलग चीज है कि सर मैंने यहाँ पे सैम क्यों लिखा है और उमर क्यों लिखा है, मैं तीसरी चौथी पांचवी, जैसे तो मैं हजार के हजार चीजें भी वहां पे देख सकता हूँ। सो व्हाट कम्स ओवर हियर, आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर ऑन। इसको एस्टिमेट किया जा सकता है कि इधर हम क्या प्लग इन करें, तो एक्चुअली क्या होगा कि हम यहाँ पे एक चीज दिखाते हैं कि इधर प्लग इन क्या करें, और उसके बाद फिर प्लग इन के बेसिस के ऊपर फिर हम जाके उसकी वो एस्टिमेट निकाल रहे हैं, जिसकी एस्टिमेट ज्यादा होगी तो आप उसको वहां पे प्लग इन करवाएं। काइंड ऑफ लाइक दिस, दैट इफ यू हैव लेट्स सपोज 1000 ऑप्शंस ओवर हियर, 1000 ऑप्शंस, think about this. One approach would be to count the probability of all of those 1000 items, sort कर दें on the basis of highest value, और फिर आपको टॉप 3 ऑप्शन जो है वो आपके पास वहां पे प्लग इन होंगे। A little bit this is time consuming. This is time consuming. तो इसके बेहतर अप्रोचेस हैं, but it does work like this. अगर मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं कि एनएलपी को आज इस तारीख पे हम स्टॉप कर देते हैं और ये बस खत्म हो गया, तो फिर आपने इस एनएलपी के बेसिक पर कोई वर्ड प्रोटेक्शन कर तो आपने ही करना है, बेशक स्लो हो कोई बात नहीं, लेकिन उस स्लो का इलाज हम बाद में करें। इधर एक मिसिंग वैल्यू भी आपके पास आ रही है, ये मिसिंग वैल्यू इधर मसला नहीं कर रही, लेकिन ये मिसिंग वैल्यू अगर आपके पास सपोज
राइट नाउ वो मिसिंग वैल्यू तो आपको न्यूमरेटर में आ गया, तो 0 डिनोमिनेटर में आ गया, तो डिवाइडेड बाय 0 आपके पास प्रॉब्लम आ जाता है, फिर ये याद करना पड़ता है। ठीक है, इस किस्म की कुछ चीजें आएंगी कि वो अभी हमें प्रॉब्लम्स यहाँ पे नजर आएंगे, लेकिन इनके इलाज बताए जाएंगे। फिर एक इलाज नहीं होता, 5-6 इलाज है, कौन सा इलाज बेहतर है? ठीक है, इस तरीके से आप इस जगह पे आप डिफिकल्ट तो नहीं है। ओके, सो फिर contextual wise तो वो नहीं, सिर्फ wording थी। जी ये तो सिर्फ wording की हद तक महदूद है ना, contextual wise तो नहीं महदूद। okay, context. So what would be the context? Right now the context is because you are working with this means zero context, this means one context. Now if you want to do the same thing for, let's suppose कि नहीं तो और context भी चाहिए, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप अपने मॉडल को जरा चेंज करेंगे। उस केस में फिर आप क्या करेंगे? आप जाएंगे ट्राइग्राम की तरफ, और फिर आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? सपोज मैं एक ट्राइग्राम की बात करता हूं, फिर आपके पास आ जाएगा काउंट ऑफ I am Sam given I am। लेकिन इसमें क्या हो गया? अब कॉन्टेक्स्ट चाहिए, तो कॉन्टेक्स्ट में फिर इस तरीके से आता, फिर क्या हो जाएगा कि आप यहाँ पे देख लें कि उस केस में हमारे पास क्या हो गया कि इधर तो मेरे पास 2 टोकन हैं और इधर 1 टोकन है, तो मुझे डाटा सेट को जब मैं प्रोसेस करूंगा तो मुझे 1 ग्राम और 2 ग्राम चाहिए। फिर जब मैं इस मॉडल पे जाऊंगा कि मुझे इजाफी कॉन्टेक्स्ट चाहिए, तो मुझे फिर 3 ग्राम और 2 ग्राम चाहिए। मे भी बाद एक केसेस आए जैसे लेट्स सपोज सेंटेंस का स्टार्ट हो, तो सेंटेंस के स्टार्ट में तो शायद ये भी एग्जिस्ट ना करता हो, तो उस केस में फिर आपको 1 ग्राम 2 ग्राम और 3 ग्राम कॉन्टेक्स्ट के खातिर फिर आपको तीनों की तीनों चीजें चाहिए और कॉन्टेक्स्ट चाहिए। सपोज यू वांट टू से कि मेरा कॉन्टेक्स्ट नेबरहुड 6 तक है, ठीक है, तो फिर आपको ये हिस्टोग्राम 1 2 3 4 5 6, you have to do histograms of all 6 of them, and फिर कैलकुलेशन में वही फॉर्मूला आपके पास होगा कि आप 6 की नेबरहुड यहाँ पे डालेंगे और इधर फिर आपकी 5 की नेबरहुड आपके पास है। अगर 5 की नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करती तो 4 की नेबरहुड चलेगी, अगर 4 की एग्जिस्ट नहीं करती तो 3 की, 3 एग्जिस्ट नहीं करता तो 2 की चलेगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दैट विल हाउ यू ब्रिंग कॉन्टेक्स्ट, बट द फॉर्मूला विल स्टिल बी द सेम। ओके, सो दूसरे बैच से आगे जाना। Kind of question in the exam. Okay. मेरे सवाल इस तरह की होता है, बस पूरा बैठा ना दे दे, लेकिन इतना नहीं है कि मैं आपको उसमें भूल जाऊंगा, परेशान करूंगा। सर इसमें ये जो आपने आई एम उठाया ये हम अच्छा लेट्स सपोज स्टार्ट करेंगे। अब मैंने एक्सप्लेन किया है, अब जरा सोचें मैं इधर इसमें आपसे क्या एग्जाम, मेरा ग्राफ दे देंगे, ग्राफ दे देंगे उसकी प्रोबेबिलिटी गेस की प्रोबेबिलिटी एंग्राम्स फाइंड करो और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी परसेंटेज देंगे, उसमें डालेंगे। अभी तो बात निकलवाने चाहिए ताकि वो फिर ना दो। अच्छा, ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू तो यू बस इसका प्रैक्टिस करेंगे यार, बस 2 है और 1 है और 3 है और 2 है, दैट इज द प्रैक्टिस पार्ट ऑफ कोर्स। वो तो करना है, वो तो आ जाएगा। मसला योग के ऐसे सिचुएशन जहाँ पे आप स्टक हो सकते, ठीक है, ऐसे केसेस जहाँ पे आप स्टक होंगे तो फिर उसके लिए फिर आपने इलाज निकालना। सर आप किस तरह मतलब पूरा आइडिया दे सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ तो स्टक होंगे तो फिर आइडिया मिल जाएगा। आइडिया इस कोर्स में आगे स्टकिंग वाली चीजें आपके पास आ रही है, ठीक है, और जल्दी आ रही है। सो ज्यादा थ्योरेटिकली इस कोर्स के अभी 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 के बाद वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें अंग्रेजी खत्म, मैथमेटिक्स
आप कहेंगे ये तो लैंग्वेजेस के कोर्स में जो है ना, बस हम तो लैंग्वेज भी चाह रहे थे, अब इसमें तो सारी मैथमेटिक्स ही आ गया। तो सारी प्रोबेबिलिटी फिलहाल फिलहाल सारी नहीं, फिलहाल हम लोग लैंग्वेज मॉडल देख रहे हैं और उसमें ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड मॉडल। सो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन नाउ। यस, ये मॉडल समझ आ गई? यस, ओके। एलएलएम की चैटजीपीटी और एलएलएम की एक इस्तेमाल। सर इसमें मैं प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा, मतलब एक टेबल बना के उसका रखना पड़ेगा अगर हमने सर ये तो Text बिल्कुल नहीं wrong होती है। है। वो है। मतलब वो स्टोरीज के हिसाब से मसला होगा। अगर n क्रॉस n का टेबल बनेगा तो वो फिर उतनी ही प्रोबेबिलिटीज हमें बैक एंड पे उसके लिए सेव करनी पड़ेगी। सेव कर दो, है ना? कैन है। वो इसका तो कॉन्टेक्स्ट वाला है, कॉन्टेक्स्ट से भी होता है। कॉन्टेक्स्ट और अगर लिंक ज्यादा हो गया तो जैसे वो ट्राई करता पहुंच गया तो और करना इसका वो फिर भी सेव हो जाएगा। मैं फिर शेयर कर रहा हूँ ग्राफ इस तरह से मुझे थोड़ी स्लो हो गई। तो उसके लिए जब मैट्रिसेस उस किस्म के होते हैं तो उसके इलाज उसमें होता है। स्पार्स मैट्रिक्स का नाम सुना है? यस। तो स्टोरेज बड़ी है तो उसके लिए स्पार्स मैट्रिक्स को भी इस्तेमाल करते हैं, उससे काफी बेहतरीन हो जाएगी। तो काइंड ऑफ आंसर है भी, यू आर राइट। और अगर ये सवाल आता और आप ये जवाब देते मैं फुल मार्क्स दे भी देता, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन दिस इज नॉट द ओनली रीजन, देयर आर मेनी अदर रीजंस आल्सो। खासकर इसमें जो आपके पास चीज आ रही है ना, ये कॉन्टेक्स्ट को आप जिस तरीके से शामिल करवा रहे हैं, ये भी बड़े इम्पोर्टेंट है। बिकॉज इफ यू लुक एट दिस इज वन वे ऑफ यू include the context. There are also other ways of same expression. So for instance, उस केस में हम इस इक्वेशन को अगर देखें तो मैं ये भी कर सकता हूँ। आई एम सैम को अगर मैं दो हिस्सों में ब्रेक डाउन करके, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा म्यूचुअली डिपेंडेंट। उस केस में आपने इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये भी टेक्निक है। जब दो प्रोबेबिलिटी वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर? की वैल्यू आएगी। स्मॉलर वैल्यूज। इफ एक 0.25 है और ये भी 0.25 है, क्या बनेगा? 0.1। जब आपके सेंटेंसेस की लेंथ काफी बढ़ जाती है, the second major problem is that these will result in extremely small values. So small that जब आप उसको लार्ज लैंग्वेजेस की तरफ जाके आप उसको करते हैं तो वो जो बाउंड्री रीजन है जहां पे उसे और स्मॉल नहीं हो सकती, तो आपके पास अंडर फ्लो हो सकता है। अंडर फ्लो, like take the probability of, let's suppose we're talking about maybe इधर एक केस है, ये एक एग्जाम्पल है। आप इधर ये बहुत छोटा सा मे बी 10 वर्ड भी नहीं है और यहाँ पे इन प्रोबेबिलिटी वैल्यूज को देखना है। इधर आपके पास जो प्रोबेबिलिटी वैल्यूज आ रही है ये तकरीबन 10⁻³ या 10⁻⁴ की कैटेगरी, स्टिल मैनेजेबल। बट व्हाट इफ यू टॉक ऑफ इवन लार्जर लैंग्वेजेस, तो उस केस में फिर आपके पास आ जाएगा so small values that they will converge in the case of the lowest ranges. ये आप बड़े स्मॉल रेंजेस में आप जाके वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी बेस्ड मॉडल्स, ये चूंकि प्रोबेबिलिटी बेस्ड मॉडल है तो उस केस में एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यूज
will become problematic in your operations. और बात स्केलिंग की भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि स्केलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास कुछ ना कुछ इलाज इसका किया जाता है, लेकिन व्हाट इफ योर हाईएस्ट वैल्यू इज 1 एंड द लोएस्ट वैल्यू इज 0, इससे तो आप और स्केल नहीं कर सकते, ठीक है? तो यू आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स व्हिच आर वेरी क्लोज टू 0 and they will still be very high. So the highest value which is over here, what is that? 0.33? 0.28? 0.66. What is 0.66 भी नजर आ रहा है. Okay. So if you want to scale it up, तो स्केलिंग के आपको तरीके देता है, आपको पता है. स्केल कर देंगे, लेकिन द पॉइंट वुड बी के बल्क जो है ना आपके पास, बल्क फिर भी आपके पास उसमें एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यूज आपके पास यहाँ पे. दैट मीन्स ये लार्ज लैंग्वेजेस में आप इसको लेके जाएंगे तो इस स्मॉल वैल्यूज की आपके इधर प्रॉब्लम आपके पास आती है. और इसकी रीजन बेसिकली ये चीज है. हम यहाँ पे चूंकि चेनिंग कर रहे हैं, चेनिंग किस चीज हो रही है? Probability, the type of probability, the type of probability, the type of probability. बैटरीज तो बाद की बात आती है. बैटरीज में तो आपके पास बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो हो रहा है, लेकिन ये इस मॉडल के अंदर वो तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे प्रॉब्लम आ गई. इस मॉडल में इंट्रिंसिक ये इम्प्लीमेंटेशन आपके पास है, ये पावरफुल भी है और ये लिमिटेड भी है. ओके, चलें, आई थिंक वी कैन वाइंड अप. नेक्स्ट जो हमारे पास वैसे टॉपिक है वो यही है बेसिकली. तकरीबन कितनी तक नॉर्मल इस्तेमाल हो सकता? हाँ, गुड क्वेश्चन. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. मेरा रूल तो ये कि जब काम करते हैं तो बस करें, जब काम नहीं करते तो आप चेंज कर दें, ठीक है? तो अब उसमें ये है कि जब आपके पास इससे बेहतर टेक्निक है तो एक ऑप्शन तो ये है कि बस ठीक है, आप बेहतर टेक्निक भी डे 1 से काम करें, इसकी तरफ जाएंगे मत. लेकिन वो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए तो फिर आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया आपके पास हो जाना चाहिए. सो आई विल वाइंड अप विद दिस जस्ट स्मॉल टॉपिक. यूजुअली अब आपके पास ये जो चीजें आपके पास बनी, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ये यूजुअली आप करेंगे तो करेंगे. यूजुअली ये जो कॉर्पसेस होते हैं ये कर चुके होते हैं, they already know, and they construct matrices. They construct matrices like this, okay, where each of the word which you have, okay, each of the word which you have, 2, 3 जो भी आपके पास कॉन्टेक्स्ट होता है वो इस किस्म के मैट्रिसेस में आपके पास स्टोर होता है. तो इसमें आपके पास ये इनकमिंग वर्ड है, ठीक है, और उधर आपके पास है ना, आपके पास आउटगोइंग आपके पास है. तो मैं क्या बोलूंगा और उसके बाद क्या मैं बोलने वाला, इस किस्म के रिप्रेजेंटेटिव. सो एज एग्जांपल, अब इस केस में आपके पास पहला डिजिट देखें 5, आई think about it. कौन सी इस्लाम में आता है आई? कब है? मे बी मिस्टेक हो, बट कॉर्पस में आ सकता है, तो वहां पे आपके पास 5 की वैल्यू. अब आई वांट, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी लाइकली. तो वहां पे आई वांट, आई के बाद आपके पास वांट आ रहे तो 820 से आता है, ठीक है. आई के बाद 2 बहुत रेयर है, आई 2, so वेरी रेयर. इन सेंस यहाँ पे आपके पास 0 आ गई. तो लाइक देयर विल बी अ हिस्टोग्राम. हमने यहाँ पे हिस्टोग्राम एक लिस्ट की शक्ल में बनाई है. एक्चुअली ये लिस्ट की शक्ल में इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये लिस्ट की शक्ल मैट्रिक्स की शक्ल में. ये टेबल प्रोबेबिलिटी स्पेस नहीं है, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ हिस्टोग्राम है इस जो बोर्ड पे बना. तो ये आ गया. तो जब ये काउंट्स आपके पास आ गए तो काउंट के बाद आप करते हैं डिवाइडेड बाय. सर इमेज इस तरह डिराइव हुई है टेबल में. हाँ, एग्जैक्टली ये चीज.
ठीक है, जिस चीज की है तो उधर उसके 1 2 3 वैल्यू तक है, जिधर जो चीज नहीं है तो आप पे 0 वैल्यू तक। फिर उसके बाद आप उसमें क्या करते हैं, उसको नॉर्मलाइज करते हैं, क्योंकि वो काउंट्स है, तो काउंट डिवाइडेड बाय टोटल कर रहे हैं, तो फिर आपके पास इस किस्म की प्रोबेबिलिटी वैल्यूज आपके पास अपने रिलेटिव। तो अब उस केस में क्या हो गया कि आप उसमें निकालना चाहते हैं तो काउंट की अब आपके पास वो एस्टिमेट्स आपके पास लुकअप टेबल में आपके पास आते हैं। यानी ये पार्ट आप नहीं करेंगे, ये पार्ट आपका कॉर्पस में पहले से हो चुका होगा, आपने जो काम करना होगा वो ये चीज है। आपकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, आप क्या पे कहेंगे व्हाट्स द मोस्ट लाइकली वर्ड टू बी स्पोकन नेक्स्ट, तो उसमें आप वो वर्ड की बेसिस के ऊपर एक एस्टिमेट निकाल लें। इसके लिए आपको काउंट की वैल्यूज चाहिए, तो ये काउंट की वैल्यूज आप जाके उस टेबल में निकाल लें, ठीक है, और वो आपके पास उस तरीके से अपडेट होकर आ जाएगा। आई वॉन्ट इंग्लिश फूड, आई वॉन्ट चाइनीज फूड, ठीक है, तो इधर आपके पास उसकी वर्किंग आपके पास आ चुकी है। मैं जरा ब्रेक डाउन करके आपको दिखाता हूँ। So, the first thing is the probability of saying I given start. ठीक है? The probability of bigram, और इन पर आपके पास एंड में दोबारा आपके पास बायोग्राम आपके पास आ गया। हमने सारी चीजें वहां पे उस किस्म की बायोग्राम जाके करेंगे। तो नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, तो उस केस में आप जाएं और वो इंडिविजुअल वैल्यूज को आप वहां पे जाके उठाएं। So as an example, if I say that this is the probability of saying I at the start of the sentence, okay, that is given as 0.25. Let's change this up. इधर तो आपके पास स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस की यहाँ पे इजाफत यहाँ पे ठीक है, ये तो दरमियान की सेंटेंसेस। सो ये 0.25 जो वैल्यू आपके पास आ रही है, ठीक है, दिस विल एक्चुअली बी 2533 डिवाइडेड बाय दिस होल सम ओवर। आई एम नॉट श्योर, आप कर दें तो शायद वो 0.25 आपके पास आए, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो बाकी वैल्यूज हैं, फूड गिवन इंग्लिश फूड, यहाँ पे हमारे पास लिख है इंग्लिश फूड। अच्छा, ये तो आई वांट टू आई ईट चाइनीज फूड है, इंग्लिश फूड कहाँ गया? ओके, नॉट गिवन। सो बहरहाल जो चीज अवेलेबल है उसी में आप कैलकुलेट करेंगे। चाइनीज फूड यहाँ पे क्या है? If you want to find out the probability of Chinese food, इनपुट में आपके पास फूड आ रहा है और आउटपुट में आपके पास चाइनीज है, तो 0.00092, ठीक है। टेबल से आपने उस तरीके से लुकअप करना होगा और जस्ट प्लेस द वैल्यूज एंड आपके पास पूरी प्रोबेबिलिटी आपके पास सेंटेंस क्या है। एक क्विज दे दूंगा उसको, फिर आपको लास्ट में फिर हम जो करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, वो फिर ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो अंडर फ्लो आपके पास आ रहा है मैथमेटिकली, उसका इलाज कैसे करना है फिर हम देख लेते हैं। जी बताइए। मतलब जो परसेंटेज की वो होता है जो आपके वो भी हम रन टाइम पे टोटल भी बनाते हैं, ये फाइंडिंग भी करते हैं प्रेडिक्शन में। परसेंटाइज परसेंटेज की वो होती है, हमने फर्स्ट को भी वन के लिए यूज कर लेते हैं, वो सिलेक्शन में भी वो है, वो मतलब रन टाइम टोटल भी बनाना है और इस तरह से उससे जो कंडीशन भी है। तो देखिए ये चीज अगर आप हर बार करेंगे रन टाइम पे तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बट इमेजिन देयर इज अ लाइब्रेरी व्हिच इज ऑलरेडी डूइंग इट, कि आप जो चीज लिखते हैं तो ऑलरेडी हर की स्ट्रोक मैं एट द एंड ऑफ द कीबोर्ड पे मैं टाइपिंग तो कर रहा हूं ना, तो अगर कीबोर्ड सिर्फ इसको इस तरीके से ना देख ले कि बस ठीक है इसने टाइपिंग की और मैंने वहां पे डिस्प्ले कर, तो उस टाइम पे
ये छोटी मोटी कैलकुलेशन भी बिहाइंड द सीन्स करता जाए, ठीक है। तो उस केस में ये फिर आपके पास एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम जाएगा। तो आपने अभी मोबाइल निकाला और कुछ टाइप भी नहीं किया हो, वो आपको पहले से ही कुछ एस्टिमेट वहां पे दे सकता है, बिकॉज इट नोज योर हिस्ट्री, ठीक है। इट नोज योर हिस्ट्री ऑफ व्हाट यू आर टाइपिंग। तो उस केस में जो है ना फिर वो हिस्ट्री वहां पे रिटेन हो जाती है। मे बी इसमें अगर आप कैलकुलेशन करके कि जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि यार उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कैलकुलेशन अभी मेरे जरूरत के टाइम पे अगर मैं करता हूँ और ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन रिएक्टिवली करें कि अभी जरूरत है अभी सारी कैलकुलेशन, लेकिन अगर ये कुछ कैलकुलेशन प्रोएक्टिवली करें तो जब आपको जरूरत होती है तो उसमें बल्क ऑफ द काम पहले हो जाता है। अभी आपको इंस्टेंटली, रिएक्टिवली का मतलब है कि इंस्टेंटली अगर आप कोई चीज चाहिए कि द नेक्स्ट 1 सेकंड, उस टाइम पे इतनी कैलकुलेशन करना इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लेकिन अगर प्रोडक्टिवली करें तो प्रोडक्टिवली शायद 2 साल पहले भी कैलकुलेट वो भी आपको। तो ये लुकअप टेबल्स, ये मैट्रिसेस, ये किन्हीं के आपके पास मेंटेन होते हैं। जैसे ही कोई अपडेट होता है मैं कहता हूँ, ताकि जब आपको जरूरत पड़े तो आप उसके लिए सिर्फ रिट्रीवल का काम, और रिट्रीवल का काम पर सिंपल है। रिट्रीवल का मतलब है कि इन टेबल्स में जाओ, लुकअप करो, तो ज्यादा से ज्यादा 5-6 लुकअप्स और 5-6 मल्टीप्लिकेशन आपके पास हो जाएंगी। वो इतना मुश्किल नहीं है, बजाय कि आप सारे के सारे ये काम आप उसी टाइम पे करें। That would be something which is not a good design. Okay, finished? Coming with that.